guys, I welcome you all in my channel, and today we are going to start the class 10th video. So here we are to study about science, and in science we are going to study biology, the easiest subject in science. Okay, and in biology we are going to study life process, the first chapter of biology. And this chapter, so first of all, let's know that what are subunits of this chapter. So it is basically divided into 4 subunits. The first one is nutrition, and after this is respiration, and then is transportation, and the fourth one and last one is excretion. We will learn the chapter in four subtopics. Okay, so the first chapter is life process. It is combined of 4 subunits. Okay, so let's start with nutrition. So nutrition, before knowing this, in nutrition we have to know about some basic things, which is living and non-living things. Okay, and it's look very easy. Okay, we have read it in even smaller classes. So living things, what we call living means those things which have life in it. Okay, living things which have life in it. And basically, to which we call non-living, those things which don't have life in it. Okay, so it was just our definition. Okay, but the thing which we have to discuss in this is what is the common characteristic on the behalf of which we can classify living and non-living things. Okay, so let's move further and look what those points are. Okay, so the common characteristic. The first common characteristic, which is that living things can grow. Okay, living things can grow. They can have movement in their body. So let's write them one by one, and I will then explain it to you. Okay, the first thing is living things can move, whereas non-living can't move. Okay, the second point is living thing need food, air and water. Need food, air and water. Okay, and here such things are not required. Okay, now we move to the third point, that is living things can grow. But when we talk of non-living things, they can't grow. Fourth point is living thing can respond to change around them. Respond to change around them. They are sensitive. Okay, the fifth point we can conclude here is living things can respire. Sixth we can conclude here, living things can excrete. Living things can reproduce. Okay, now what about, it was all about living things, what things are can take place in living things, but what are the things that taken. So I suggest you from that point 2. Okay, from this, it is just opposite to non-living thing, is just opposite to living things. Okay, so if living thing can move, then they can't move. Okay, living thing need food, air and water, but non-living thing doesn't require those things. Living thing can grow, but non-living things can't grow. Living things can respond to change around them. They are sensitive, but
In case of non-living things, such things are not fine. Okay, living things can respire, living things can excrete, living things can reproduce, but these life processes doesn't take place in non-living things. Okay, so now let's move further. Okay, and we had done it, and I think you got it, but then also I would like to tell you it in Hindi. Living things can move. That means लिविंग थिंग को जरूरत नहीं होती है कि मतलब उनको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, वो लोग अपने इच्छा अनुसार यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, उनको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, किसी पर्टिकुलर सपोर्ट की. वेयर एज व्हेन वी टॉक ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, उनको किसी पर्टिकुलर फोर्स, प्रेशर या फिर किसी हेल्प की जरूरत होती है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सपोज दैट वी द ह्यूमन बींग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हम लोग को मतलब किसी जरूरत की नहीं होती है ना, कोई आएगा बंदा हम लोग को उठा के लेके जाएगा, फिर हम लोग उस प्लेस पे जाएंगे. बट सपोज दैट दिस पेन, दिस बुक which we consider as non-living thing, they can't move themselves from one place to another. We take it with ourselves so they can move. Okay, the second point we need, तो हम ह्यूमन बींग्स को क्या होता है, फूड, एयर एंड वाटर की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए. बट क्या ये जो पेपर है हम लोग का, जो कॉपी है, जो पेन है, उनको भी क्या इस सब की ज़रूरत पड़ती है? सो द आंसर वी गेट इज नो, दे डजंट रिक्वायर दिस थिंग्स. ओके, लिविंग थिंग्स as we, not only the human, all the living things, they can grow, वो लोग ग्रो कर सकते हैं, बट ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो लोग ग्रोथ को शो नहीं करते हैं. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हम लोग मतलब जैसे कोई भी एक्शन होता है हमारे अराउंड, तो हम लोग उसको रिस्पॉन्ड कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं कि मतलब उसका वी आर आंसरेबल टू द सिचुएशन. बट नॉन लिविंग थिंग्स डजंट. ओके, सपोज दैट फिजिक्स में हम सब लोग में पढ़ा ही होगा एक्शन और रिएक्शन. अगर हमें कोई एक झापड़ रख दिए तो फिर हम पलट के उसको जवाब देते हैं. बट सपोज दैट इफ वी हर्ट टू नॉन लिविंग थिंग्स, सो इज इट गोइंग टू रिस्पॉन्ड यू? सो द आंसर इज नो, दे कांट रिस्पॉन्ड. ओके, and we can respire, we can excrete, we can reproduce. Okay, these were the things which we do, we human beings. Respire means we utilize our energy. हम लोग एनर्जी मतलब क्रिएट करते हैं अपनी बॉडी में. एक्सक्रीट, वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, लिविंग थिंग्स. रिप्रोड्यूस मीन्स द ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस देयर यंगर वंस, बट सच थिंग्स आर एब्सेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स. So it is very interesting to know. Now we are going to move our first sub unit that in this chapter, which is nutrition. Okay, before knowing nutrition, we should know about life processes, and the basic thing that is used in nutrition is food. We will know about these two topics, and after that we will move further. Okay, so now we are going to read about life process. The chapter name is it, so it is interesting to know about this topic. So basically what we call life process. So life process is basic function performed by living organisms to maintain their life on this earth. Okay, so let's write it. The basic function performed by living organisms to maintain their life on this earth are called life process. Okay, so we have done with definition. What definition state? Okay, the basic function. कोई भी बेसिक फंक्शन जो होता है, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करने चाहिए उसकी लाइफ को इस अर्थ पे मेंटेन करने के लिए. मतलब क्या ऐसी चीज़ें होती हैं अगर जिन फंक्शंस को अगर ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ना करे तो वो इस अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकता है. तो वही जो बेसिक फंक्शंस होते हैं, वही जो बेसिक फंक्शंस होते हैं, उसको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है इस अर्थ पे सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, उसी को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, लाइफ प्रोसेस. ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट लाइफ प्रोसेस. अब हम लोग को देखना है कि कॉमन लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ऐसे लाइफ प्रोसेस जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू लुक अबाउट कॉमन लाइफ प्रोसेस. सो गाइज, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कॉमन लाइफ प्रोसेसेस, ऐसे लाइफ प्रोसेस जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं. ठीक है, so there are about 8 life processes which are mentioned in our book.
So first is nutrition, okay. Second is respiration, third is transport, fourth is excretion, and fifth is control and coordination, and then the sixth is growth, and seventh is movement, and then is reproduction. These were the 8 common life processes which is found in living organisms. So we will discuss it one by one. You see here the from 1 to 4 there is nutrition, respiration, transport, and excretion. If you remember, so I tell you in before when I was starting the video, that these are the 4 subunits which are included in this chapter, which are the smallest unit of this chapter, which combine to form this chapter, okay. तो हम लोग का ये तो हो गया फर्स्ट चैप्टर में, ये हम लोग को फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगी कॉमन लाइफ प्रोसेस. उसके बाद जो 5th, 6th and 7th है, ओके, वी विल फाइंड इट इन सेकंड चैप्टर, एंड दिस 8th one is in third chapter. So we will study it one by one. It is not too lengthy, but yeah, it will take some time. So you will have to be patient. You have to keep your patience and just calm down. It is enjoyable. Just enjoy. So the first thing which we had, that is nutrition. So we will discuss nutrition. So first of all, what is nutrition? It is listened to us from the very childhood. It is told to us we have a proper nutrition, proper nutrients should be consumed by us so that our body functions well. But what exactly nutrition means? Okay, so nutrition, it is a process which involves taking of food inside the body and converting it into smaller molecules which can be absorbed by body, which can be absorbed by body. So here we are done with definition of nutrition. So let's understand. चलो इसको समझ लेते हैं कि ये न्यूट्रिशन मतलब होता क्या है. तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो इन्वॉल्व करते हैं, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ये एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी एंड कन्वर्टिंग इट इनटू स्मॉलर प्रोसेस. ये जो चीज़ है वो इन्वॉल्व होती है इस प्रोसेस में, ओके. मतलब हम लोग फूड को अंदर लेते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं, फूड इनसाइड द बॉडी हम लोग बॉडी के अंदर लेते हैं. उसके बाद जो फूड बॉडी के अंदर कंज्यूम किया होता है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. और क्यों कन्वर्ट करते हैं, ताकि वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, ओके. सो सिंपली इट इज दिस, आई फाइंड दैट दिस इज सिंपलेस्ट डेफिनेशन यू कैन हैव. सो जस्ट हैव, इट इज प्रोसेस which involve the taking of food inside the body and converting it into smaller molecules which can be absorbed by the body, okay. It was of nutrition. So now see what nutrition means, of feeding of what thing, taking of food. When we talk of food, so what basically we know about food. So let's have some basic knowledge about food. What the food is बेसिकली. और भी नो कि फूड वो होता है जो हम लोग डेली खाते हैं, ठीक है, उससे हम लोग को एनर्जी मिलती है. बट क्या साइंटिफिक वे में उसका क्या टर्म्स यूज हो सकते हैं हम लोग फूड को डिफाइन करने के लिए, क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, ओके. सो एंड बेसिकली यू नो व्हाट, इन क्लास 10th वी शुड नो the topic in points. It will be easy for us to remember, and as well as we can write it in very effective way. So first point which we find is food is kind of fuel. It is a kind of fuel which provide energy to all the living organisms. Energy to all the living organisms.
Now we move to the second point. Moving to the second point, we found that it is an organic substance. Food is an organic substance. After that, what the third point we get? It's food. Food is organic. So the third point we have that energy required by an organism comes from food, and it is also explained in the first point. हम लोग को फर्स्ट पॉइंट में भी यही कहा गया है कि जो एनर्जी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होती है वो एक काइंड ऑफ फ्यूल होती है, एंड वो हम लोग को किसको हम लोग बोलते हैं, मतलब फूड को बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद इसके नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज द सिंपलेस्ट फूड इज कॉल्ड ग्लूकोज, एंड टू ग्लूकोज वी कॉल सिंपल शुगर, ठीक है. हम लोग सिंपलेस्ट फूड को ग्लूकोज कहते हैं, एंड ग्लूकोज को हम लोग सिंपल शुगर भी कहते हैं, ओके. एंड व्हाट अबाउट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फूड? अगर फूड कॉम्प्लेक्स हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको स्टार्च बोलते हैं, और उसको हम लोग स्टार्च का कॉमन नेम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ओके. सो दिस वर द पॉइंट विच वी शुड नो. आई वुड एक्सप्लेन यू इट वंस मोर. फूड क्या होता है? एक काइंड ऑफ फ्यूल होता है जो हमारी मतलब जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है. हम ही को नहीं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है. जैसे किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए हम लोग को फ्यूल की ज़रूरत होती है, उसी तरह हम लोग को अपनी बॉडी, अपनी लाइफ को चलाने के लिए इस फ्यूल की ज़रूरत होती है, जिसका नाम क्या है? फूड है, ओके. सेकेंड एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग इज फूड क्या होता है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. थर्ड इज कि हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है. ये तो छोटे से बच्चे को पता होगा, ओके. द फोर्थ पॉइंट इज सिंपलेस्ट फूड को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल शुगर बोलते हैं ग्लूकोज को, ओके. द फिफ्थ पॉइंट विच इज मोर कॉम्प्लेक्स फूड. जब फूड जो होता है जब वो कॉम्प्लेक्स होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं. स्टार्च को कॉमन नेम, ऐसे कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, ओके. सो ये था हम लोग के फूड के बारे में. सो हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में तो एक बार पढ़ ही चुके हैं, फिर से बता देती हूँ कि न्यूट्रिशन क्या होता है. एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लेते हैं. उसमें भी क्या हम लोग पिछली बार बोले थे कि इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, और उसको फिर हम लोग क्या होता है? सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं. और यहाँ पे भी वही है, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट बाय एन ऑर्गेनिज्म. आपको जो डेफिनेशन अच्छा लगा यू कैन यूज दिस, ओके. नाउ वी हैव द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली मीन्स होता है कि मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म किस वे में कैसे अपना फूड मतलब कैसे वो अपना फूड ऑब्टेन करता है. बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड, okay. So this means the mode of nutrition, and when we move further we have two mode of nutrition. The first one is autotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition, and the second one is heterotrophic. ये तो हो गया कि मतलब दो सब यूनिट्स होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक हो गया और एक हेटरोट्रॉपिक हो गया. अब इसमें क्या होता है? अब इसमें क्या पढ़ना है भाई? इसमें कुछ नया है? कुछ ऐसा नहीं है, सब बहुत इजी है, ये सब पढ़ा हुआ है, ओके. ये जो हम लोग का ऑटोट्रॉपिक है वो दो वर्ड से कंबाइन होकर बना है, ठीक है. दो वर्ड से है. पहला वर्ड जो हम लोग का है वो है ऑटो, एंड द सेकेंड वर्ड इज ट्रॉपी. ऑटो मीन्स हम लोग का क्या होता है? ऑटो मीन्स होता है सेल्फ. ऑटो मीन्स वो ऑटो रिक्शा ना समझ लेना. ऑटो मीन्स सेल्फ, एंड ट्रॉपीज मीन्स न्यूट्रिशन. Trophies means nutrition, and when we talk of heterotrophic nutrition, so it is also the combination of two words. The first one is hetero, and the second one is tropy. Hetero means क्या होता है? Others, and it means nutrition. So basically हम लोग ये वर्ड तोड़ के तो उसका मीनिंग निकाल लिया. अब इसका मतलब क्या होता है? So I know you guys are smarter and you have understood that autotrophic nutrition means क्या होता है? self nutrition होता है, ठीक है. And when we talk of heterotrophic, तो ऐसा nutrition which is derived from others, okay. I think now you got it. So let's move after this let's move further. So when we talk about definition, so what is definition of these two? I mean definition is required not to classify anything. So when we talk of definition, so autotrophic, it is mode of nutrition in which an organism
an organism makes its own food. From simple inorganic material like you can take carbon dioxide, water, okay, and in presence of sunlight and chlorophyll. ये तो हो गया कि मतलब व्हाट ऑटोट्रॉपिक बेसिकली मीन्स थ्रू डेफिनेशन. तो ऑटोट्रॉपिक मीन्स क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. ओके, दे मेक देयर ओन फूड. तो हम और किससे बनाते हैं, आई मीन रॉ मटेरियल्स तो रिक्वायर्ड ही होते हैं ना फूड बनाने के लिए. तो इनके रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. So heterotrophic mode of nutrition is mode of nutrition in which an organism can't make their own food. Can't make their own food. They can't make their own food from simple inorganic material. Material. Okay, I mean to say that it depend on other organisms. Heterotropics depend on other organisms for their food. Okay, so we had seen that ऑटोट्रॉप जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द सिंपल रॉ मटेरियल, वेयरएज व्हेन वी टॉक ऑफ हेटेरोट्रॉपिक सो दे आर जस्ट अपोजिट. ओके, दे आर जस्ट अपोजिट. ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं. ये तो था मतलब बेसिक सा डेफिनेशन के थ्रू मतलब कैसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं. अब हम लोग को न्यूट्रिशन चैप्टर में बस इसी के बारे में पढ़ना है. यही जो हम लोग का ये सबसे बेसिक पार्ट था, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. अब इसी के बेसिस पे एक बार हम लोग ऑटोट्रॉपिक्स में, तो ऑटोट्रॉपिक में हम लोग एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, सारे ग्रीन प्लांट्स हो सकते हैं, ग्रीन बैक्टीरिया, आई मीन सम बैक्टीरियाज भी हो सकती हैं. जबकि वैन हम लोग हेटेरोट्रॉप के बारे में बात करते हैं तो हेटेरोट्रॉप्स में जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स हो गए, लॉयन, टाइगर, जिराफ एंड सम बैक्टीरियाज को भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं हेटेरोट्रॉपिक में. ठीक है, सो ये तो था कॉमन सा मतलब क्लासिफिकेशन. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब ऑटोट्रॉपीज में न्यूट्रिशन कैसे होता है एंड हेटेरोट्रॉपिक्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है. So guys, now we are going to study about autotrophic mode of nutrition. Okay, the first thing, autotrophic nutrition. Autotrophic means self nutrition होता है. self nutrition कौन करता है, हमारे जो plants होते हैं, okay, जिनके ऊपर हम humans, animals खुद depend होते हैं, जो अपना food मतलब खुद बनाते हैं, वो कौन होता है, plant होता है. हम animals उनके ऊपर depend होते हैं. ठीक है, तो autotrophic मतलब क्या हो गया. And one more thing, autotrophic, those organisms which comes under this topic, this category is called autotrophs. Okay, and those which come in the category of heterotrophic, they are called heterotrophs. So हम लोग autotrophs की बात करें तो autotrophs कौन से होते हैं, हम लोग के प्लांट होते हैं. और प्लांट में प्लांट न्यूट्रिशन पे जब हम लोग बात करते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब प्लांट न्यूट्रिशन. तो प्लांट के मतलब न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. अब फोटोसिंथेसिस जो है हम लोग का वो दो वर्ड से कंबाइन होके बना है. द फर्स्ट वन इज फोटो विच मीन्स लाइट एंड द सेकेंड वन इज सिंथेसिस. सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड. अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते तो क्या सेंस निकल के आता है. फोटोसिंथेसिस मीन्स बिल्डिंग अप बाय लाइट. फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन अबाउट द बिल्डिंग अप बाय लाइट. ओके, अब for actually what process took place in this process, I mean the photosynthesis में होता क्या है. तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हम लोग का लाइट एनर्जी जो है वो कंबाइन होके क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है. सो यही जो प्रोसेस है इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. ओके, सो गाइज अब हम लोग को फोटोसिंथेसिस समझने के लिए एक डायग्राम दिया हुआ है और उस डायग्राम को हम लोग को समझना है. ठीक है, ये हम लोग को यहाँ पे एक पेड़ दिखाई दे रहा है, ये एक पेड़ है.
ठीक है। यहाँ पे ये इसके रूट्स हैं, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और ये फूड जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो हम लोग के फूड होते हैं वो यहाँ पे लीफ में बनते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग पढ़े हैं कि मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस लाइट एनर्जी जब कंबाइन होते हैं, और वो लाइट कहाँ से आती है, हम लोग की सन से आती है, ठीक है। तो क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस, मतलब क्लोरोफिल के प्रेजेंस में तो फोटोसिंथेसिस अकर करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो इसी को समझने के लिए हम लोग इस डायग्राम से समझेंगे। पहले होता क्या है, हम लोग के जो रूट्स होते हैं, ठीक है, ये वाटर को कैरी करते हैं। वो वाटर जो हमारे सॉइल्स के पार्टिकल्स के बीच में पाए जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि उनके मतलब वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो कहाँ लेके जाते हैं, लीव्स के पास लेके जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड रॉ मटेरियल जो मतलब होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमको हमारे एटमॉस्फेयर से मिलता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर से मिलता है और वो किसके थ्रू आता है, स्ट्रोमेटा के थ्रू आता है लीव्स में, ठीक है। ओके देन फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर और वाटर यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है वो मतलब क्लोरोफिल, हम लोग को बेसिकली पता होता है कि हमारे लीव्स में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिस ग्रीन पिगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल की वजह से हम लोग का सनलाइट एनर्जी जो होता है वो ट्रैप हो जाता है लीव्स में। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन होता है, फूड को जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। उसके बाद वो ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होता है एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द होल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड इट इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस में होता क्या है और कैसे होता है। सो आई एक्सप्लेन यू एज I can।